हाय डियर ऑल, मैं सर गजेंद्र दीक्षित वंस अगेन आपके लिए लाया हूं और एक जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के अलावा ऑर्गेनिक की शुरुआत ही नहीं हो सकती। यू नीड टू लर्न दिस टॉपिक वेरी वेरी डीपली, then and only then you will be able to solve the question which they ask you in JEE Mains और JEE Advanced। डियर स्टूडेंट, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है उसी की ऑर्गेनिक की पकड़ सबसे अच्छी होती है। You should understand what is inductive effect, electromagnetic effect, hyperconjugation, resonance, types of reaction, substitution reaction, SN1, SN2, all these things एकदम डीपली करनी चाहिए, बिकॉज एवरी ईयर इन जेई मेंस आल्सो, इन नीट एग्जाम आल्सो, इन जेई एडवांस आल्सो यू विल फाइंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हियर इज वन मोर क्वेश्चन they have asked in JEE Advanced paper 2009 conceptually based on the topic called as GOC. They have given the four structures. One is the phenol, second is the paraclone of phenol, third is the benzoic acid, and fourth is paramethyl benzoic acid. And the question is, arrange these four compounds in a decreasing order of their acidic strength. See, number one point, you need to remember this order of acidic strength. There is no other option. You have to by heart which type of compounds are more acidic in nature. So this ready-made order I had already given you. You can pause the video, you can take it down, you can remember it. अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, सल्फोनिक एसिड की एसिडिक पावर सबसे अच्छी होती है फिनॉल में, लेकिन आपको स्पेशली ये कंपाउंड याद रखना पड़ेगा। क्या ये कंपाउंड देख के आपको कोई नाम याद आ रहा है? Yes, you are correct. It is picric acid, 2,4,6 triनिट्रोफिनॉल। जनरली फिनॉलिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं। जनरली अदर फिनॉलिक कंपाउंड्स are less acidic than any carboxylic group, but 2,4,6 triनिट्रोफिनॉल is a picric acid, is more acidic than any other carboxylic acid. So you have to remember this order. Then the carboxylic acid like formic acid, benzoic acid, acetic acid and all other carboxylic group, H2CO3 compound carbonate, फिनॉल इसके बाद नंबर आता है। अल्कोहल में यहाँ पे भी बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं। डियर स्टूडेंट, यू नीड टू रिमेंबर दैट वाटर इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन एनी अल्कोहल। पानी दारू से ज्यादा एसिडिक है। सिर्फ एक ही दारू है बच्चा जो पानी से भी ज्यादा एसिडिक है, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। इज एक्सेप्शनल केस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। कई बार जेई एडवांस यहाँ गूगली भेजेगा, बट स्टूडेंट रिमेंबर दैट वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। यू नीड टू रिमेंबर मिथाइल अल्कोहल इज इवन मोर एसिडिक देन वाटर। And then other like alkyne, ammonia, alkene and alkane. This is the acidic order. So first you have to check कि वो कंपाउंड कौन से पैटर्न से, कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखो 1 and 2 ये फिनॉलिक कंपाउंड है बच्चों। These two are phenolic. In phenolic compound only picric acid 2,4,6 triनिट्रोफिनॉल is more acidic than any carboxylic acid. These are not picric acid. These are phenolic. And these two are carboxylic. So this order says that any carboxylic group is always more acidic than any phenolic group. If you remember this order, then you directly come to the conclusion that 3 and 4 must be more acidic than 1 and 2, because 1 and 2 are phenolic nature के compound है and 3 and 4 are carboxylic nature के compound है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं करना है। इनके कंपैरिजन में ना इंडक्टिव, ना रेजोनेंस, ना हाइपरकॉन्जुगेशन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अप्लाई तभी होता है बच्चों when the two compounds are belong from the same functional group. If they are having same functional group, then you will check any electronic effect apply करते हुए उनके एसिडिक को आप जजमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर दो कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप ही अलग है तो उनका नेचर ही अलग है, उनमें कोई इफेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे इन दोनों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। दीज आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 101% दे आर मोर एसिडिक देन फिनॉलिक नेचर वाले कंपाउंड। सो 3 and 4 की एसिडिटी 1 and 2 से ज्यादा होगी। देन हमें 3 and 4 में किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? यहां सिंस बोथ आर कार्बोक्सिलिक, नाउ वी विल अप्लाई द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। And you know when it is directly associated with benzene, immediately comes in our mind is our resonance effect. You can notice here बच्चा, acidic nature मतलब tendency to release H plus ion. कितने जल्दी H plus भागेगा? हालांकि it is completely depend upon the Ka value and pK value.
but we can judge it by applying your electronic effect. Let us apply resonance effect over here. कैसे अप्लाई कर दिया जाता है? कोई भी कंपाउंड के एसिडिक नेचर फाइंड आउट करने के लिए उसके H+ को निकालो और बचा हुआ उसका कॉन्जुगेट बेस, whether it is stable or not, check that. If the conjugate base is stable, then maybe the tendency to release H+ of that compound will be more. So you need to find out the conjugate base of the given compound. इसका सीधा साधा कंसेप्ट है, H+ घर छोड़ के कब भागेगा? जब उसको मालूम है कि मैं घर छोड़ने के बाद मेरा बचा हुआ घर स्टेबल है। अगर उसको इसकी गारंटी है कि मैं घर छोड़ के गया तो भी मेरे घर को स्टेबिलिटी मिलेगी, तो शायद H+ जल्दी भागेगा। लेकिन अगर H+ को लगता है कि मैं जाने के बाद मेरा घर अनस्टेबल हो जाएगा, तो शायद वो अपने घर को छोड़ के नहीं जाएगा, वो इतना निर्दयी नहीं बन सकता। तो लेट अस रिमूव दिस H, इन दोनों के H को निकालते हैं। ये बन गया उनका कॉन्जुगेट बेस। कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा? कौन से माइनस चार्ज को कम किया जा सकता है? आप देखो यहां मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। यू ऑल आर अवेयर मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन को देगा तो बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोक्सिलेट आयन को देगा, इससे इसका चार्ज बढ़ जाएगा। एंड अगर माइनस चार्ज बढ़ गया तो दिस कॉन्जुगेट बेस विल बिकम अनस्टेबल। तो शायद इसका H इसको छोड़ के जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो छोड़ने के बाद इसका घर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो रहा है। ऐसा इसमें नहीं, इसमें कोई पीछे लगा नहीं है ग्रुप जो इसके चार्ज को बढ़ावा करे। लेकिन यहां पे ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का चार्ज बढ़ जाएगा। एंड इफ दैट कॉन्जुगेट बेस का चार्ज बढ़ गया, मतलब कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो गया, तो शायद ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है कंपेयर टू दिस, तो इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। सो 101% बच्चों 3 विल बी मोर एसिडिक देन 4। सेम कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करते हैं। 1 और 2 का नंबर 3 और 4 के बाद आएगा, क्योंकि वो फिनोलिक है। अब यहां पे क्या अप्लाई करते हैं बच्चों? ये फिनोलिक है और यहां क्लोरीन अटैच्ड है। अगर आपको पता है, मैंने मेरे लेक्चर में भी एक्सेप्शनल केस आपको बताया, ये गूगली है, जेई एडवांस पूछ रहा है। बच्चों को लगता है क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर देगा, बट इफ यू रिमेंबर देयर इज एक्सेप्शनल केस दैट हैलोजन व्हेनेवर डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, इट्स -I is dominating over resonance. Generally resonance is more dominating effect, but this is the exceptional case. That is why they have asked in JEE Advanced. This is the exceptional case जो बच्चे भूल जाते हैं कि हेलोजन अगर बेंजीन को अटैच्ड है तो हेलोजन के केस में उसका -I is more dominating over resonance। मतलब यहाँ पे वो हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां अगर मैं इन दोनों के H को हटा दूं और इनका कॉन्जुगेट बेस बना लूं बच्चों, इनके कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर करूं कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, तो यहां क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रिंग ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस दिशा में जाएगा, इससे इसका माइनस चार्ज कम होगा। एंड अगर माइनस चार्ज कम हुआ मतलब दिस conjugate base will be more stable, and if the conjugate base is more stable then the acidic nature is more, so 2 will be more acidic than 1. Final order, 3 is more acidic than 4, after that 2, after that 1, and that answer is given 3 4 2 1. That will be the correct answer. 3 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद 4 एसिडिक होगा, उसके बाद 2 एसिडिक होगा, उसके बाद 1 एसिडिक होगा, and that order is given in option A. So option A is the correct answer. बच्चों जेईई एडवांस का पेपर सॉल्व करते समय सारी गूगली आपको याद रखनी पड़ेगी। Why I have covered this question? Because there is one special googly given. Halogen is attached to benzene. Generally students think about the resonance, but again and again highlighted point, halogen -I effect is very strong compared to resonance, especially when it is attached to benzene. And you need to remember this acidic order also. ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में पूछे गए हैं, ऐसे लेकर आपके साथ हमेशा मिलता रहूंगा बच्चों। जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करते समय PYQ सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, जेईई मेंस और नीट, फोकस ऑन PYQ। ये PYQs आपको एग्जैक्ट आइडिया देते हैं बच्चों कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको एनटीए या आईआईटी पूछने वाला है, एंड आप अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार कर सकते हैं।
पढ़ते रहिए, मजे लुटते रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बाय। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली फॉर JEE मेंस, एडवांस, नीट UG, MHT CET, 11-12 साइंस, 9-10 स्टेट बोर्ड एंड ICSE बोर्ड। रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी।